Bismillahirrahmanirrahim. It's 8:34, so we have to start now. I hope you are listening me and my screen is being shared to you. Yes, sir. Thank you. So last time we did this slides. So if still you have or you have any questions regarding boost converter, you may ask the questions. We did this one, and basically we derive the output input equations for the boost converter. Find options. So basically this is the equation for the output for the boost converter. We derive this equation. So please remember this equation and make a red circle on this equation 9.18, so it will be used in the next slides. So if you have any question, you may ask, otherwise we will continue. So I will ask later on at the end of this first half class, first half lecture, I will ask some questions from you from this area. Now, some other derivation for the boost converter. So we have so far derived the equation for the buck converter, and we know the output of the buck converter is V out is equal to KVS. Duty cycle multiplied by input source, and we know the equation of the boost converter in the previous slide, that the output is equal to V input 1 over 1 minus K. So some other equation we need to derive for the boost converter. So okay, we start to follow the text on the slides. What is I out? I out means I out during on time. ये हमने कराया था आप लोगों को? ये तो नहीं करवाया था ना? I hope no. So I out during on time is IC. Where is on time? This is on time. Where is I out? So this I out is this one. So the I out is basically is IC. Is it correct? Yes, it is correct. क्योंकि जो आउटपुट है करंट वो कलेक्टर करंट ही है, सॉरी कलेक्टर करंट कह रहा हूँ, कैपेसिटर करंट है. So I out is basically IC. Okay. What is next? While I out during off time is I. अच्छा, इसी I out के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर I out is basically IC for the on time. इसी तरह से ये कह रहे हैं ओके, प्लीज जिन्होंने माइक ऑन किया है वो ऑफ कर दें, क्योंकि इस तरह से क्लास डिस्टर्ब होती है. फिर ये कि मुझे सबके माइक ऑफ करने पड़ेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी. ये कौन है? 071 आपने अपना माइक ऑन करके आप बैठ गए हैं. प्लीज ये अपने माइक को ऑफ कर दो. और आई शुड रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. Okay. So step by step, this is important.
So while I out during off time, अच्छा on time में I out is basically IC है, ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ऑफ टाइम में I out की वैल्यू कौन सी है? पॉइंट ऑप्शन। सो while I out during off time कौन सा है? ये है। इस ऑफ टाइम में I out कहाँ पर है भाई? I out बेसिकली ये है, दैट्स राइट। सो I out इज बेसिकली I इस लूप में ऑफ टाइम में I is the main current, and this current flows to the collector current part of the, this current is divided into the collector current and then the output current. So in this case, we can say that I out is basically main current minus IC. So while I out during off time is I minus IC. So these are the two basic equations. For both on and off time, I out is in essence function of II. As I said before, last time, yesterday, that basically if you review or reconsider this one, what is happening here कि ये एक कन्वर्टर है, ठीक है ना? कन्वर्टर मीन्स आउटपुट पावर को ये, सॉरी, इनपुट पावर को आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स राइट। और वी कैन से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इनपुट एनर्जी को ये आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब तो सिंपल ये हो गया कि अगर ये इनपुट लूप है और ये आउटपुट लूप है, तो जो भी इनपुट पावर है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू द आउटपुट पावर। अगर यहाँ पर इस कन्वर्जन में कोई लॉसेस नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो भी इनपुट पावर है वही एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ input power or same amount of input energy is transferred to the output energy. So in this case, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि output current for this on period, output current is a function of input current. Can we say? Yes, we can say that output current is a function of input current. क्योंकि on period में inductor energize हो रहा है because the switch is on. So the current starts to flow through the inductor, and more the current and more the energy is stored across the inductor. That's simple. अच्छा, अब जब यहाँ पर ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो ऑफ पीरियड में यही स्टोर्ड एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड टू द आउटपुट पावर। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट करंट यहाँ पर ज्यादा होगा, तो यही ग्रेटर इनपुट करंट विल बी द फंक्शन ऑफ द आउटपुट करंट। तो ज्यादा इनपुट करंट यहाँ फ्लो होगा तो वही इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्विवेलेंट होगा। सो दैट्स मीन्स कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आउटपुट करंट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट। सो हाउ वी कैन राइट आउटपुट करंट इज हियर, आउटपुट करंट इज फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट and this is constant. So output is proportional to the input current. And why we have T off? Because this output current exists only during the kahan gaya? Okay, so okay, so basically for both okay, for both on and off time के लिए जो आउटपुट करंट है वो फंक्शन ऑफ इनपुट करंट है। यहाँ पर इन्होंने पहले लिया है और ऑफ पीरियड के लिए पहले इन्होंने ऑफ कहने का बहुत दोनों कंडीशंस में। सो फर्स्ट दे टुक फॉर द ऑन पीरियड, सॉरी ऑफ पीरियड। ऑफ पीरियड में जो आउटपुट करंट है इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट। यस, the more the output current, the more if we have more input current, the more output current. So output current is function of input current and the time. This is because for the off period, so T off है, and चूंकि टोटल T से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब है the average output current है, right? So is this one is the average output current during the off time,
and T off is equal to T minus T on over T I और इसे हमने T से हर एलिमेंट को डिवाइड कर दिया तो 1 minus T on upon T and in this case I out is equal to I 1 T on upon T is basically K. So this is the new equation we formed here. जो भी इक्वेशन डिराइव की जाती है उसमें कोशिश ये किया जाता है जैसे आउटपुट करंट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट करंट तो हमें आउटपुट करंट की इक्वेशन में इनपुट करंट आना चाहिए और ड्यूटी साइकिल आनी चाहिए तो ड्यूटी साइकिल भी ऑलरेडी नो कि जो ट्रांजिस्टर है उसे किस ड्यूटी साइकिल पे पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक के जरिए किस ड्यूटी साइकिल पे उसे ऑपरेट किया जा रहा है तो वी नो ठीक है तो यहाँ पर आउटपुट करंट हम मालूम कर सकते हैं दिस इज वन ऑफ द so it is during on time the current delivered to load is actually II. ये कह रहे हैं कि yes I already have said about this one previous cycle. Similarly in off time also I out is अच्छा ये बता ही रहे हैं कि out चाहे on switch हो या switch off हो under both these cases आउटपुट करंट एग्जिस्ट ऐसा नहीं है कि जी ऑन पे तो आउटपुट करंट आ रहा है ऑफ पे आउटपुट करंट नहीं है ऐसा नहीं है तो द आउटपुट करंट इज आउटपुट करंट एग्जिस्ट और इट फ्लोज फॉर द ऑन स्विच में आउटपुट करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है चार्ज कैपेसिटर से और ऑफ टाइम में आउटपुट करंट कैसे फ्लो हो रहा है एनर्जाइज इंडक्टर से ये इंडक्टर एनर्जाइज है तो इस ये डी एनर्जाइज हो रहा है यहाँ पे एनर्जाइज था यहाँ पे डी एनर्जाइज हो रहा है तो आउटपुट करंट विल एक्सिस्ट सो द आउटपुट करंट बेसिकली एग्जिस्ट इन बोथ द on time and the off time so the output current will equals to the summation of this current plus this current thus average output current is equal to I on इसमें I on है and I off. Output current basically is a function of input current here, but ये चूंकि on के लिए है तो I out is equal to I on plus ये I output is a function of input current, but this is for the off period, so I have written I off. If you have any question, please ask. Okay, as we said before, we are not performing any research tasks. Any research task we are not performing. We are not performing any critical analysis. We are not analyzing. We are not doing anything special. So this course is about the understanding of the buck boost and buck boost converter. So we will only follow the basic versions of the calculations. So under the basic assumption, we can assume that the converter is lossless. Means, अगर converter, for example, 100 watt यहाँ पर है input, तो this converter is converting this total 100 watt to the output. So it means in this circuit there is no losses. अगर कोई losses नहीं है, the power in will equal to the power out as we have assumed in the previous slide. So neglecting losses, input power will equals to the output power, and what is input power? PI is equal to VI, ठीक है? And P out is equal to basically V power की जो equation है, एक तो ये है VI, दूसरी equation है V square by R. So because this is V out, so V out square by R. So this is the equation. And we also know that V out for the boost converter is this equation as we drive the previous slide. This is the output equation for the boost converter. So what happens? VI V out की जगह पे हमने यहाँ पर इस equation को place कर दिया. So V out is equal to V input square 1 minus K square और ये R as it is आ गए. So now VI ये है VI है basically both are the same. तो ये VI डिवाइड हो गया
I and II is equal to VI upon 1 minus K square R. So this is a new equation. This is 9.21. So we found two equations. One is for the output current and the second current is for the input current. इस input current मालूम करने के लिए आपको कितनी चीजें जरूरत है? Input voltage, जो कि already we know कि what is the input voltage and the duty cycle, and the resistance R. Resistance R आपको खुद ही पता होना चाहिए क्योंकि you are going to place. This is the load resistance. So everything is almost we already have almost known. So I we can. So this is the second equation. Now go for the next equation. Switch on. So this is for I n is equal to, for the switch on we already know I max plus I minimum. 1, 2. We derive this for the buck converter. So I maximum plus I minimum is equal to 2 I. This is one. This is next equation 9.22. And now inductor voltage. How we can find inductor voltage? This is on period. On period में inductor voltage कितना है? Where is on? On. ये है. इस on में inductor voltage कितना है? इस on में basically ये grounded है. So जो भी input voltage है वही inductor voltage होगा. क्योंकि अगर आप इस ground है ना, इसकी टांग को पकड़ के ना इसको इधर ले आए, तो both are in parallel. So whatever be the input voltage, that will actually become the inductor voltage. So एक तो हमें ये हमने निकाला कि कहाँ गया, inductor voltage is equal to input voltage. That's right. And from the basic physics we know inductor voltage can be determined by this fundamental equation. Inductance, rate of change of current, right? So we have this equation and such equations will frequently be used. So please remember these equations. तो इसे मजीद इन्होंने क्या क्या है, यहाँ पर di over dt को di over dt की वैल्यू निकाली vi over l. तो ये इन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि ये चीज इसके बराबर है. एंड फर्दर ऑन इन्होंने di as we know the assumption, di को इन्होंने किससे चेंज कर दिया है? di को यहाँ पर चेंज किया है del I से, स्ट्रेट लाइन, एंड vi over l, और dt को उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि dt is valid for the on period. So यहाँ पर t on कर दिया है. So del I is equal to vi upon l t on. And del I is basically can also be written as I maximum minus I minimum. We know del I is equal to I maximum minus I minimum is a change in the current, and this equals to this value vi upon. And we found this is as equation number 9.3. I have taught if it is 9.3 or 9.13, 9.3, I don't know. Okay, so you can verify from this from the textbook. So this is the another equation. So far we found I out, I in, and I maximum plus I minimum, and del I change in the current. Adding equation 9.22 and 9.3, इन दो equation को मैं अगर add करूँगा तो I maximum ये I minimum cancel out हो जाएंगे. So we end up with this equation. And if you want to calculate only I max, so divided by 2. And what's going on here? Okay, we have to use this value. Let's see how we can. So I max is equal to II. II की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमने प्लेस की है? इस वैल्यू को प्लेस की. Vi 1 minus k square R and plus Vi upon 2L 3 on time. So this was the another equation. Probably I need to rearrange this one further on. So we have the same equation I max here.
इसमें क्या क्या वी आई कॉमन है, वी आई को हमने कॉमन ले लिया 1/1 माइनस k स्क्वायर r. So this is the final equation for the I max value. Now the time is to calculate the I minimum value as we did before. I minimum के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर के जो इक्वेशन हमको उनको ऐड करने की जगह पे instead of adding we have to subtract. अगर मैं subtract करूंगा, कहाँ subtract करेंगे, ये वाली इक्वेशंस, ये देखें, ये 9.22 और 9.3 को हमने ऐड किया था यहाँ पर. अब 9.22 और 9.33 को subtract करेंगे. So we will end up, if similarly, I minimum can be derived as I min is equal to Vi. Where is Vi? This one. Okay, it is not derived here. It's stated directly, but you can of course derive. You can of course, you need to derive. If it is asked in the examination, you have to derive it. So, but the similarity you can find, you can see this similarity in the I max and I minimum. I max में देखें यहाँ पर प्लस है और I min में यहाँ पर माइनस है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. And the rest of the things are same. Vi 1 minus k square r t on upon 2l. So all this. So if you remember one of the equation, अगर आप I max को याद रखेंगे, so you can also automatically recall I minimum value by replacing plus 2 minus here. So this is equation number 9.25. Now some more equation. Peak to peak value, I know, we know I max minus I minimum. Basically, this is I max minus I minimum, peak to peak value. So this is equation number 9.3. We already have done in the previous slide. Say I max minus I minimum is equal to Vi upon LT on, as we can see in the previous slide. I max minus I minimum is equal to Vi over LT on 9.3. So this from 9.3. For now, the last thing, we derive the input current, we derive the equation for the output current, we derive the equation for the change in or input current, we derive the equation for the I maximum, I minimum, peak to peak. Now it's time to calculate the minimum value of the inductance required to be operated the converter in the CCM mode. And we know the minimum requirement for the CCM mode में क्या होता है कि अगर आउटपुट करंट जस्ट टच कर ले जीरो को, स्टे ना करे, जस्ट टच करे जीरो को, तो that is the minimum condition for the CCM mode of operation. So for CCM mode, minimum requirement is I min should be, I min can be equal to 0. ठीक है. So in equation 9.25, where is equation 9.25? This is equation 9.25. Set I minimum is equal to 0. 9.25 में I minimum की वैल्यू को यहाँ पर 0 set कर दिया. And now you can find here. This one is 0. Vi 1 minus k square r minus t on upon 2l. And इसे आप just rearrange करें. I think I lost one bracket here. So if we rearrange this one, just it's a rearrangement, nothing special, and the L is equal to R T on 1 minus K square over T. So this is the new equation 9.27, and this is really very important equation because normally we are asked to determine the value of the minimum inductance for the CCM mode of operation of the any converter, the buck converter and the buck boost converter and the boost converter. So the minimum value, this is the equation required to select the minimum value of the inductance for the condition to meet CCM operation. And this equation is only valid for the boost converter. Okay, so this is the equation for the boost converter, please. Okay, I have finished this topic. So if you have any question, please you may ask.
Please don't try to sleep. सर ये CCM में एक बार समझा. ये वाला यस सर. देखें, CCM मोड ऑफ ऑपरेशन जिसमें आउटपुट करंट जीरो ना हो, जीरो पे स्टे ना करें, ठीक है ना. Can I use this one? I don't know where is whiteboard. Okay, let's see. Okay. So CCM mode of operation, yes. The CCM mode of operation is the operation where the current can be zero. So because this is the from equation, यहाँ पर CCM mode of operation के लिए करंट की वैल्यू को जीरो किया जा सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने जीरो वैल्यू प्लेस कर दी और the rest of the equation is as it is. अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर सिर्फ रीअरेंज किया है बस. It's just simple mathematics. So there is nothing to explain more. What is your question? क्या आपका यही क्वेश्चन था? Yes sir. Okay. Now, so the conclusion of today's understanding, we derived few equations for the boost converter. The first equation is this one, and then the second equation is this one, 9.25, 9.3, and the output equation is output equation हमने पहले derive किया था. Output equation is equal to this one. Output equation is equal to this one, and can I use this? Sorry. So this is ये जिसने भी क्वेश्चन किया था ये बताएं कि ये सी से मोड ऑफ ऑपरेशन है अगर if this is I out. Yes sir. क्यों है? सर क्योंकि इस पे आपका करंट जो है वो जीरो को टच नहीं कर जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना. एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सी से मोड ऑफ ऑपरेशन, अब मुझे नहीं पता ये कैसे, सॉरी इसे मैं कैसे स्टॉप करूंगा. दिस इज आल्सो सी से मोड ऑफ ऑपरेशन. यहाँ जस्ट टच किया इसने, इसके बाद ऊपर आ गया, ठीक है. सो दिस इज आल्सो सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन क्योंकि इट रिमेन्स कंटिन्यू, चल रहा है. 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर है, 9 एम्पेयर है, 4 3 2 1 0, 0 के बाद फिर 1 2 3, इट डज नॉट स्टे. और ये अगर आप ले लें, एक ऑपरेशन ये भी हो सकता है, इसके बाद ये स्टे रहता है 0 पे, फिर ये and then it stays at 0. So this is the purely the this is not the CCM mode of operation because यहाँ पर ये stay करता है current. So in for the CCM mode of operation, the current needs output current, basically output current can touch to 0, but it should not stay. मुझे पता नहीं इसे कैसे मैं delete करूँ. Okay, control
Let's see it. में इसको डिलीट हो जाना चाहिए. Okay. So the next is, I hope there is no further question. Want to keep ink annotation? No. Sorry. Discard करना है. Good. That's good. So यहाँ तक हमने कर लिया. Okay. Now, in order to understand it more clearly, we need to solve some examples. सारे equation आप याद रखें. We'll use all these equations in the examples. Example 9.7, draw the DC-DC converter. सबसे पहले आपको बताया गया कि DC-DC converter draw करना है. Okay. Which DC-DC converter? It is not mentioned here. कौन सा DC-DC converter आपको draw करना है? Buck converter, boost converter, buck boost converter, or any other converter. It is not written here. So you have to decide which converter should I draw. Draw the DC-DC converter to obtain 440 volt from 110 volt DC. इसका मतलब है इनपुट में 110 वोल्ट है and you need to step up to 440 वोल्ट. So it means कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो DC-DC कन्वर्टर ड्रॉ करना है वो बूस्ट कन्वर्टर ड्रॉ करना है. नंबर 1. नंबर 2, इनपुट वोल्टेज 110 दिए हुए हैं, आउटपुट वोल्टेज 440 वोल्ट. Determine the chopping frequency at which the switch transistor should be operated while the T on time is. एक तो बताया कि जो ट्रांजिस्टर जो इस कन्वर्टर में बूस्ट कन्वर्टर में जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड टी ऑन टाइम इज गिवन 0.25 मिलीसेकंड. आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी मालूम करना है और कुछ नहीं करना. I think you don't need to draw the waveform. Okay. Solution. From equation 9.18 we derived last time. So V out is equal to V in. तो 1 माइनस इसे हमने रीअरेंज करके V इन की वैल्यू कितनी रख दी है. V इन की वैल्यू 110 वोल्ट है, V आउट की वैल्यू 440 वोल्ट है एंड we determine 1 minus K is equal to 0.25 and K will be 0.75. So duty cycle we found. अब आपको ड्यूटी साइकिल ये तो पता चल गया है 0.75. So and you also know the on time. So आप यहाँ पर से ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं. So duty cycle is equal to T on over T. T is equal to, so time period कितना निकल गया 0.33 millisecond and the frequency we can obtain is by simple equation 3 kilohertz. So the frequency is 3 kilohertz. आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया. इस सर्किट में आपने जाहिर आपको सर्किट बूस्ट कन्वर्टर की ही ड्रॉ करनी है. So I have drawn the boost. जब भी आप ये ड्रॉ करें ये आई की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, इनकी पोलैरिटी सही होनी चाहिए. यहाँ पर पल्स विद मॉड्यूलेशन वेव शेप होना चाहिए, स्क्वायर वेव होना चाहिए. ट्रांजिस्टर की जो सिंबल्स हैं वो सही होना चाहिए. डायोड की करंट इस डायरेक्शन में, कैपेसिटर की करंट होना चाहिए, आउटपुट करंट होना चाहिए और आउटपुट पोलैरिटी भी होना चाहिए प्लस माइनस. ऑल दीज थिंग्स वी नीड. क्या हो गया? Okay, let's see. So we finished this example. 9.7 is solved. Example 9.11. Draw the DC-DC converter to obtain 75 volt at output load 1.5 ohm from input supply 50 volt दी हुई है, output आपको 75 volt मालूम करना. The converter uses 0.8 millihenry inductor and switch on time is 1.5 millisecond. Find the following चीजें मालूम करनी है. Imax, Imin, draw waveform for VL and VI, IL and solution. Solution क्या है? From equation 9.18 V out is equal to this one. So duty cycle की वैल्यू आपको 0.33 निकल गई है. K is equal to this one and if we find the time period is 4.5 millisecond. Time period is, so total time period 4.5 मिलीसेकंड है और ऑन टाइम दिया हुआ है आपके पास 1.5 मिलीसेकंड. सो ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 4.5
minus 1.5. So you need to draw this waveform. कि ऑन पीरियड कितना है 1.5 मिलीसेकंड, ऑफ पीरियड 3 मिलीसेकंड है, ये आपने निकाल दिया। इस टोटल जो टाइम पीरियड है वो 4.5 मिलीसेकंड है। So the frequency is 222 hertz from equation 9.21. II की वैल्यू आपने ये निकाल ली 74.25 amps, and you need to draw this waveform. So you need to draw this waveform. Okay, so II की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या निकालनी, C में I max, you use the equation I max 120.85. Again, you use the equation for the I minimum 27.4 amps. So now the last thing, C और D हमने मालूम कर लिया। C और D, E की वैल्यू क्या है? Draw waveform for inductor voltage and the inductor current. दो चीजों की वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करनी है। So पहले इंडक्टर वोल्टेज, so we have this one, इंडक्टर वोल्टेज है ये। So ऑन पीरियड में इंडक्टर वोल्टेज कितना होगा? क्योंकि ऑन पीरियड है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो जो इनपुट वोल्टेज होगा वही इंडक्टर वोल्टेज बन जाएगा। सो द ऑन पीरियड में इनपुट, ऑन पीरियड में ये जो वोल्टेज है वो बेसिकली इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज कितना दिया होता? 50 वोल्ट, दिस वन 50 वोल्ट। अब ऑफ पीरियड में आपको निकालना है, ऑफ पीरियड में ये जो, अच्छा, ऑन पीरियड में इंडक्टर चूंकि एनर्जाइज हो रहा है तो इसकी वेव फॉर्म प्लस साइड को बनेगी, और ऑफ पीरियड में चूंकि इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है तो इसकी वेव फॉर्म नेगेटिव में बनेगी। क्योंकि एनर्जाइज में इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है, और जब ये डी एनर्जाइज होने लगेगा इसकी पोलैरिटी माइनस और प्लस हो जाएगी, द पोलैरिटी विल चेंज। दैट्स व्हाई वी हैव हियर माइनस। बट हाउ वी फाउंड 25 वोल्ट? ऑफ में आप ये समझ लेंगे ये ऑफ है, ऑफ ऑफ होने का मतलब ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब ये एक ही लूप बन गया आपके पास, ये दिस इज, ये मिला करके ये आपको एक लूप बन गया। इसमें इंडक्टर वोल्टेज कितने होंगे? आउटपुट, इसके इस टर्मिनल पे कितने वोल्टेज है? आउटपुट है। इसके इस वाले टर्मिनल पे कितने वोल्टेज है? इनपुट है। तो आउटपुट माइनस इनपुट विल इक्वल्स टू इंडक्टर वोल्टेज। सो आउटपुट माइनस इनपुट कितने है? आउटपुट कितना है यहाँ पर? 75 वोल्ट है। इनपुट कितना है? 50 वोल्ट है। तो 75 माइनस 50 इज इक्वल टू वी आउट माइनस वी आई इज इक्वल टू वी आउट 75, वी आई 50। तो ये आपको, ये जो लेवल है ना, ये लेवल कहाँ पे है? 25 वोल्ट पे। एंड इट विल for the off period, again the things will repeat. So we have drawn the inductive, the the voltage across the inductor, the waveform for the voltage across the inductor we have drawn. Now we have to draw the inductor current waveform. इसी तरह से ऑन के लिए और ऑफ के लिए। So how we can draw? ऑन में क्या होगा देखें, ऑन जब ये स्विच ऑन तो इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट इज इंक्रीजिंग। एक मिनिमम वैल्यू से करंट इंक्रीज होकर के मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। तो करंट फॉर द ऑन पीरियड, इस ऑन पीरियड में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, इट विल हैव इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। तो ये ऑन पीरियड में जो इंडक्टर करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब कितना इंक्रीज होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमने निकाली है? आई मैक्स वी फाइंड आउट 120.85, 128. अभी देखिए डाउन कितना जाएगा, ये डाउन कितना जाएगा? ऑफ पीरियड में इंडक्टर डी एनर्जाइज होगा तो करंट की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो गई। अदर थिंग्स विल कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पर
मिनिमम वैल्यू कितनी है? We already find 27.4, 27.4 amperes. And the average, of course, you can find it here, but we already have found input average current is 74.25. Any question? Any question? तो मतलब सब सो रहे हैं. हाँ सर. सर उठे थे सर. Okay, I think without break, क्योंकि आप लोग वैसे ही relax हैं. So without break, we have to continue the next half of the today's class. तो यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आई शुड टेक अटेंडेंस नाउ. So I have attendees 23. शायद कुछ गेस्ट भी होंगे. गेस्ट कितने हैं? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ये सारे मौजूद हैं क्या? 29. ये जो मौजूद नहीं है वो ये है. ओके, एनीवे. So it's time for the attendance. Download attendance. Okay. I should ask some questions. Yes. Some question. किससे start करूँ मुझे? We should ask. चलिए ये जितने भी even numbers हैं ना उनसे start करता हूँ. 020. 020. 020 Fawazul Hassan. No response from you. Okay. 028. Yes sir. सैयद वलीद अहमद. Yes, आज sir. हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने क्या चीजें स्टडी की? सर आज हमने जो बूस्ट कन्वर्टर है उसकी करंट की इक्वेशन निकाली थी. इनपुट करंट, आउटपुट करंट, मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट. फिर हमने 9 पॉइंट. ठीक है. गुड गुड गुड. थैंक यू. इसके बाद इवन नंबर में कौन है? 64. 064. 064 है शहजाद अहमद खान. यस जी शहजाद अहमद खान, अब तक हमने क्या पढ़ा? सर, बूस्ट कन्वर्टर के बारे में पढ़ा. बूस्ट कन्वर्टर की सर करंट इक्वेशन की सर ये न्यूमेरिकल किया अभी सर. एग्जांपल 9.11. ओके गुड गुड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब इसके बाद कौन है? 074. 074. 074 मोहम्मद रिजवान. यस सर. जी मोहम्मद रिजवान. यार आपने मिड में कितने मार्क्स लिए? सर मिड में फुल 20. 20 में से 20 ले लिया आपने? यस सर. तो आपसे क्या क्वेश्चन करना, छोड़े यार. अच्छा सोना नहीं, ले जागते रहना. ठीक है. सर जागे हैं. अच्छा इसके बाद 084. 084 कौन है? 084 है वजाहत अली. वजाहत अली, आपका जवाब देना बहुत जरूरी है. वजाहत अली. So no response from Wajahat Ali. Okay. Next is 088.
उमर खान। जी उमर खान, ये सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है यार, थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। सर ये आपने अभी बताया था, इसका थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताया। नहीं, ये तो मैंने वैसे किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, अदरवाइज ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है बहुत पहले, सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन, तो वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया हुआ है, तो मतलब ये कोई नया टॉपिक नहीं है। किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने वो पॉइंटर में पेंसिल का ऑप्शन था, मैंने ड्रॉ करके बता दिया। तो आप बता दें कि क्या है सीसीएम और डीसी में क्या फर्क है। सर ये इसमें टी ऑफ और टी ऑन जो होता है, इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें सही है जिसमें आपने कहा, इंडक्टर जो है पूरा जीरो नहीं होता, वो सीसीएम होता है। सही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड। अच्छा, द नेक्स्ट इज जिसमें ड्यूटी साइकिल कम होता ड्यूटी साइकिल, जिसमें बेसिकली वजाहत ऐसा है कि ये सारे चीजें प्रोब्स हैं, यानी कि यानी कि ये इट सेज के अगर ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 50% हो तो देयर इज अ चांस कि ये सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। इन इसकी जो डेफिनेशन है जो हमने अभी इस डेरिवेशन में पढ़ी है कि सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन वो मोड है जिसमें करंट जीरो पे स्टे नहीं करेगा, टच तो कर सकता है और फिर कंटिन्यू रहेगा, करंट विल कंटिन्यू ऑल्दो इट टचेस टू जीरो। लेकिन डीसी मोड ऑफ ऑपरेशन में आउटपुट करंट जो है ना वो टच भी करेगा और थोड़ी देर के लिए वो जीरो रहेगा, डिसकंटिन्यू करेगा। सो अब सीसीएम मोड, ये जो आप जवाब दे रहे हैं ना कि इंडक्टर की वैल्यू और ड्यूटी साइकिल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस कि ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन में ये आ सकते हैं, बट द राइट आंसर फॉर द सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन जिसमें करंट की वैल्यू जीरो जस्ट टच हो, ठीक है ना। अब आप ये जस्ट टच कैसे कर रहे हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, आप ये कैसे पॉसिबल कर रहे हैं कि ये स्टे ना करे, आपने ड्यूटी साइकिल बढ़ा दी है, ठीक है ना। दीज आर मतलब ये तो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी मैंने जी इंडक्टर की वैल्यू फला रख दी और ये इट्स नेसेसरी, या ड्यूटी साइकिल हमने 50 से 51% कर दिया तो इट्स नेसेसरी कि ये सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन, इट्स नॉट गारंटी। ओके, हसन अली शाहिद, नो रिस्पांस फ्रॉम हसन अली शाहिद। आगा नबील, हसीब रऊफ अब्बासी। जी सर। जी, सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन और डीसी मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या फर्क है। सर सीसीएम में जो हमारा आउटपुट करंट है वो जीरो को टच करता है, या फिर अगर ड्यूटी साइकिल से ज्यादा हैं तो वो जीरो से अबव रहता है, जीरो के जीरो पे वेरी नहीं गुड आता। आंसर, डिस्प्ले थैंक यू हसन अली शाहिद। अच्छा, सर अपने आगा हसीब नबील ने जवाब दिया, किसने जवाब दिया ये। सेव राउट। सर मेरा वो माइक का इशू हो रहा था, अब सही है। हसीब रऊफ है। सर मैंने अभी आंसर दिया। अच्छा सही है, चलिए कोई बात नहीं। हसीब रऊफ, मुबश्शिरा ज़ैब है, मुबश्शिरा ज़ैब। अच्छा, वसाफ अली खान, मुबश्शिरा ज़ैब कहाँ गायब है। ओके, रुमैज अली, रुमैज अली, रुमैज अली, सैफ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन, सैफ हुसैन। जी जी सैफ हुसैन,
आज हमने क्या स्टडी किया है? सर बूस्ट करंट की डेरिवेशन की है जिसमें आउटपुट करंट, इनपुट करंट निकाला, मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट निकाला है। उसके ठीक है, बाद ठीक है, ठीक है, गुड, थैंक यू। इसके बाद है सैयदा उरूबा। सैयदा उरूबा हैं आप यहाँ पर? ये सारी ख्वातीन जो है ना, ये सारी एब्सेंट हुए हुए। ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट द नेक्स्ट, but still if you find any questions throughout this lecture, you may ask anytime. So this हेलो सर, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी? सर नेटवर्क इशू हो रहा था सर पहले। अच्छा अच्छा, I hope you are sharing the screen. Screen आपको नजर आ गई होगी. This one is lecture 21, buck boost converter, understanding and waveform. So for the buck boost converter, we have to understand its working principle, and then we have to draw the waveforms. I think there is no derivation, but the derivation is available inside the book. So if you want to understand the derivation, you can do it yourself from the book. But the examples and the waveforms are included in this lecture. So buck boost converter, as the name implies, buck means it has the buck circuit, and it has also the boost circuit. So it means this one is this one. It means this one has the property of the buck converter as well as the property of the boost converter. So it means the output can be stepped down because it is buck, and the output can be stepped up because it is the boost converter. So both the properties are used here. So we have to understand its working principle. I mean, we normally understand its working principle by splitting it into two parts, the on for the on period and for the off period. So this is very simple, and hopefully it will not be a problem for you because you already have gone through the buck converter and the boost converter. So this is the combination of the last two converter. So hopefully you will not have any questions, but you may ask. So this, oh, I don't have here animation. Okay. So basically this is the top one is the circuit of a buck boost converter. So आपको याद होगा buck converter में switch जो है ना input के side होता था. So switch is here, but this is the rearrangement of the buck and boost converter, and the final this circuit is formed with this shape. So this is the buck boost converter. So we should try to understand it. It's simple. We have the switching transistor, we have inductor, diode, capacitor, and the output. So things are quite similar, but yes, not probably, but definitely the position of the switch, the position of the inductor are reallocated here. It's not exactly as the buck and boost converter. So this is this is the different circuit from the buck and boost converter. Now
without wasting time, we have to understand its equivalent circuit. So this, the first one is the on the equivalent circuit for the on duration of the switch. So on duration is this one, the high voltage. High voltage, the switch will remain on for this. This is IGBT here. The collector, emitter, and gate. We will discuss these things later on. But this, for the time being, you can see that this is just a bipolar junction transistor, NPN transistor. Collector है यहाँ पर, emitter है, and this is the gate signal or the base. So this is not the NPN bipolar junction transistor. This one is the inside, the material is different, inside the circuit is different, but overall it is basically a transistor. So you don't have to worry about this thing. Whenever the gate pulses will be high, the transistor will turn on, and the transistor will turn on, it means it will become short circuit as here. So this is the short circuit for the on period. अब on period में equivalent circuit आप कैसे draw करेंगे? यहाँ पर आपने short कर दिया, और जब शॉर्ट करेंगे और तो यहाँ पर ये इंडक्टर आ गया. And now we have to see why this diode is not included in this on equivalent circuit. Because जब ये शॉर्ट हो गया, तो प्लस सप्लाई है इनपुट की, and this plus supply is going to be connected at the cathode of the diode. तो कैथोड पे प्लस है तो जाहिर बात है it will be reverse bias. So there is I have removed completely this end-to-end diode circuit here. So this is the equivalent circuit for the on period. And now assume it still looks, it also looks like two independent circuit. एक input circuit है और एक output circuit है. So we can assume that during the previous cycle this capacitor was fully charged. जब कैपेसिटर fully charged था तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पिछली साइकिल में कैपेसिटर fully charged था, जब ये ऑन पीरियड आया तो ऑन पीरियड में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. कैसे डिस्चार्ज हो रहा है? You can notice also the direction of the polarity of this capacitor. देखिए इनपुट पे पोलैरिटी प्लस है माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है माइनस है, इट्स ओके. बट द आउटपुट पे जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है, ऊपर माइनस नीचे प्लस. तो हाउ द करंट विल फ्लो? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस. सो करंट यहाँ से फ्लो होगा, मुझे यहाँ पर एरो देना चाहिए था, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा इस तरह होते 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 यहाँ से ये आउटपुट करंट ऐसे आएगा. सो करंट इज emitting the charges, the coulombs, these are coming out of the capacitor electrodes. कैपेसिटर से वो बाहर आ रहे हैं करंट. तो इसका मतलब ये हुआ the capacitor is going to discharge. तो यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज होकर के जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, this is basically the output current. ठीक है. So this is quite similar to the boost converter here. What I will say कि इस ऑन पीरियड में इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है और कैपेसिटर जो कि प्रीवियस साइकिल में फुली चार्ज था, अब कैपेसिटर यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है एंड इट डिस्चार्जेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द आउटपुट करंट. इसका मतलब ऑन पीरियड में आउटपुट करंट भी है और इनपुट करंट आल्सो एग्जिस्ट. Now for the off period, I don't know why I have not written here on and off. बट जब भी आप ड्रॉ करेंगे, अगर आपने इस तरह से आपने एग्जैक्टली इसकी कॉपी कर दी तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड विच वन इज ऑन इक्विवेलेंट सर्किट एंड विच वन इज ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट. सो यू मस्ट हैव टू मेंशन, यहाँ पर आप मेन सर्किट लिखें, यहाँ पर लिखें कि आप इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ऑन पीरियड, इस जगह लिखें इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ऑफ पीरियड. अगर आपने इस तरह छाप दिया तो शायद आप पूरे नाम मिल पाए. ओके, नाउ the case where the switch is off, is 0 voltage पे ये switch off हो जाएगा. It looks like the duty cycle is 50%. यहाँ पर 0 हो गया
ये ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन सर्किट हो गए। तो ये आप ये देखें, ये दिस इज द ऑफ ड्यूरेशन। एंड इस ऑफ ड्यूरेशन में हमने स्विच को ऑफ कर दिया, क्योंकि ऑफ ड्यूरेशन मींस स्विच इज ऑफ, इट्स एन ओपन सर्किट। अब इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस। यहाँ पर ये शो क्या है कि डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस। व्हाई? देखें, जब ये स्विच ऑफ हो गया तो जो इंडक्टर जो एनर्जाइज हुआ था प्लस माइनस में, अभी स्विच ऑफ हो गया, मींस एक्सटर्नल सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। नाउ दिस विल बिकम द सोर्स ऑफ सप्लाई। अब ये सोर्स ऑफ सप्लाई कैसे प्रोवाइड करेगा? ये डी एनर्जाइज होगा। जब डी एनर्जाइज होगा तो एनर्जाइज की सूरत में यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था। डी एनर्जाइज की सूरत में पोलैरिटी विल चेंज, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। जब ये यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आ गया, तो द कैथोड इज कनेक्टेड विद माइनस। दैट मींस द डायोड हैज टू बी फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। अब आपके पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बननी है, इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इनपुट तो सप्लाई है ना, आपने तो इसको तो बिल्कुल ही आउट ही कर दिया। इनपुट, द इनपुट सप्लाई इज कंप्लीटली डिसकनेक्टेड, इज रिमूव्ड ऑलमोस्ट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर सप्लाई, अब ये जो इंडक्टर में जो वोल्टेज, जो एनर्जी स्टोर हुई थी, अच्छा अब इंडक्टर की पोलैरिटी देखें, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस। यहाँ से प्लस से ये माइनस की तरफ है। So this is the main source of the supply now, because this is disconnected, but this is inductive energy. So this inductive जो energy इसने store किया है, ये energy will be released from here. तो प्लस से माइनस है, तो ये करंट की फॉर्म में रिलीज होगा, और ये इंडक्टर करंट है। Some of the inductor current will move towards the capacitor. So this inductor current will charge the capacitor, and some of the current will move to the आउटपुट लोड, और यहाँ से आउटपुट और ये कंबाइन होकर दोबारा इंडक्टर में वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इट लुक्स लाइक अ पैरेलल सर्किट। इफ यू सी हियर, द इंडक्टर, द कैपेसिटर एंड द लोड, द थ्री एलिमेंट्स आर इन पैरेलल। और वोल्टेज कितने होंगे? जो इंडक्टर के वोल्टेज होंगे वही कैपेसिटर के वोल्टेज होंगे, वही आउटपुट रेजिस्टर के वोल्टेज होंगे। बट द डिफरेंस इज, वोल्टेज तो सबके बराबर होंगे क्योंकि ये पैरेलल में है, लेकिन ये करंट जनरेट कर रहा है इन ऑर्डर टू चार्ज द कैपेसिटर। सो दिस इज परफॉर्मिंग टू टास्क। ये बेसिकली ये खुद एनर्जाइज हो रहा है लेकिन कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। इस केस में क्या था, सॉरी सर मैंने गलत कह दिया, ये खुद डी एनर्जाइज हो रहा है, ये डी एनर्जाइज हो रहा है, और डी एनर्जाइज मींस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो करंट है वो is used to charge the capacitor. Hope you understand. And if you have any question, please raise your hand. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर overall if we try to understand this one, overall ये है कि on period में ये short हो जाएगा, the inductor will energize, current will increase. Off period में ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो जो इंडक्टर में जो एनर्जी एनर्जाइज हुई थी वो एनर्जी अब रिलीज होगी to charge the capacitor. So this is the phenomena of this buck boost converter. तो अब ये तो हमने कह दिया buck boost converter है। तो अब आप ये देखें कि how we can understand its working principle. So as far as the circuit operation for the on period and for the off period, we have discussed this thing. A buck boost converter or regulator, specifically regulator, if you want to increase the output voltage, you can increase. If you want to decrease the output voltage, it can decrease. So it's a step up converter as well as a step down converter. But how we can regulate, how we can make a step up or a step down? By changing the duty cycle at this transistor. इसकी यहाँ पर ड्यूटी साइकिल चेंज करेंगे
तो आउटपुट आपकी इंक्रीज भी हो सकती है. Probably when you increase the duty cycle beyond 50%, the output voltage will be a step up. If you decrease the duty cycle below the 50%, then the output will be a step down. Let's see. So a buck boost converter or regulator provides an output voltage that could be less than or greater than the input supply. Yes. When switch is on, I already have explained you. When switch is on, VI directly connected to inductor and energizes inductor. Here, इस केस में input is equal to inductor voltage. इस केस में जो input voltage वो basically inductor voltage हो रहेंगे. Simultaneously, the capacitor was already full charge in the previous cycle. Previous cycle में capacitor charge था, so then it will be discharge supplying current to the load. तो अब ये इस स्टेज पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और ये लोड पे करंट सप्लाई कर रहा है. Yes, the last when switch off, inductor is connected to the load. जब switch off हो गया, inductor is connected to the load and to the capacitor. Thus, energy is transferred to capacitor and तो जो एनर्जी इसने प्रीवियस साइकिल में गेन किया था वो एनर्जी ट्रांसफर होगी कैपेसिटर को चार्ज करने में और लोड पे आउटपुट करंट देने में. नोट, आउटपुट पोलैरिटी इज रिवर्स देन द इनपुट सप्लाई. अब ये देखें, इससे पहले जो भी हमने कन्वर्टर पढ़ा है उसमें जो इनपुट पोलैरिटी होती थी प्लस यहाँ पर है, तो आउटपुट में भी यहाँ पर प्लस आया करता था. बक कन्वर्टर में भी एंड ऑल्सो इन द बूस्ट कन्वर्टर. लेकिन इन दिस कन्वर्टर व्हाट वी कैन सी हियर ए इनपुट पे अगर यहाँ पर प्लस है, आउटपुट पे इस जगह पे माइनस है. तो इट्स अ रिवर्स, the polarity is reversed. So this should be remember. ठीक है कि अब क्यों polarity reverse है? Why the polarity is reversed is simply explained in this equivalent circuit. जब ये ऑन था तो ये एनर्जाइज हो रहा था, ऑफ में ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये सोर्स ऑफ सप्लाई बन गया. अब चूंकि ये डी एनर्जाइज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जाहिर बात है यहाँ पे माइनस है, प्लस, तो ये वाला पोर्शन माइनस का बन गया और ये वाला पोर्शन प्लस का बन गया. प्लीज रिमेम्बर, कुछ बुक्स में आई थिंक एमएच राशिद नहीं, यस एमएच राशिद में या दूसरे बुक्स में या ऑनलाइन में आप इस चीज को नोट करेंगे कि इन्होंने मिस्टेक किया है कई दफा. जो इनपुट पे पोलैरिटी है वही आउटपुट पे पोलैरिटी रख दी गई है, बट दिस इज नॉट करेक्ट. प्लीज मस्ट रिमेंबर, आप गलती से ये मिस्टेक ना कर दें. सो आउटपुट पोलैरिटी इज रिवर्स देन द इनपुट पोलैरिटी. मैं आपसे भी पूछूंगा कि ये क्यों पोलैरिटी रिवर्स है. व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है, स्विच ऑन यहाँ लिखा है, स्विच ऑफ मैंने यहाँ लिखा है. अच्छा, yes, we have to draw the waveform. We have to draw the waveform. तो waveform draw कर रहे हैं. Pulses at gate of IGBT. ये जो ट्रांजिस्टर था यहाँ पर, इसमें जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड स्क्वायर वेव दे रहे हैं वो हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है. ठीक है, so this is the pulse, these are the pulses at the gate of the IGBT. On period है, off period है. Now we have to draw the input current. किस ड्यूरेशन के लिए? पहले हमें इस ऑन पीरियड के लिए इनपुट करंट
ड्रॉ करना है। अब ये देख रहे हैं इनपुट करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जाहिर बात है इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम और इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम। दिस टू थिंग्स वी हैव टू कि इस और इनपुट करंट क्या प्लस पे है या माइनस साइड पे है, ये भी हमें देखना है। तो दी थ्री थिंग्स यू नीड टू नो टू ड्रॉ द वेव फॉर्म। नंबर एक, क्या ये ऊपर साइड में बनेगा या नीचे साइड में बनेगा, पोलैरिटी। नंबर दो, क्या ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज दिस इज द स्विच ऑन स्टेटस। इस स्विच ऑन स्टेटस में आई कहाँ पर है, ये है स्विच ऑन है। तो दिस सप्लाई इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंडक्टर, सो द करंट विल फ्लो, करंट विल इंक्रीज। मिनिमम वैल्यू से करंट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा और it is basically charging, it is basically energizing the inductor. So as long as the supply is connected with the inductor, supply इसे charge energize करता रहेगा। So the current will increase, ठीक है ना, करंट यहाँ पर से increase करेगा तभी ये energize होगा। So the trend of the current for the on period is increasing. So it should increase from minimum value to current is increases. Now for the off period में what should be in the off period? Off period में सबसे पहले ये देखें कहाँ off period, ये है यार। off period में तो input current है ही नहीं, it is disconnected, so it is very easy to draw। आउटपुट में कुछ ये तो आपने मामला ही खत्म कर दिया। So input current will be zero, input current is zero here। Again on होगा तो जाहिर बात है as we are assuming from the very beginning कि ये completely de-energize नहीं होगा। जब completely de-energize नहीं होगा तो करंट यहाँ से जीरो से रैंप अप नहीं करेगा बल्कि एक मिनिमम वैल्यू से रैंप अप करेगा, because it is not completely, neither of the capacitor nor the inductor will completely de-energize or discharge, because this we have to make CC mode of operation। So ये वेव फॉर्म हो गई इनपुट करंट की। अब नेक्स्ट क्या है, डायोड करंट ड्रॉ करना। वेयर इज डायोड करंट फॉर द ऑन पीरियड? ऑन पीरियड में डायोड कहाँ पर है, ऑन ये डायोड तो है ही नहीं, तो क्या होगा, करंट विल बी जीरो। यहाँ पर डायोड करंट में करंट इज जीरो। अब आप ये देखें, अब डायोड करंट नेक्स्ट क्या होगा, ऑफ पीरियड में डायोड करंट। देखिए ऑन पीरियड में डायोड डिस्कनेक्टेड है लेकिन ये एनर्जाइज हो रहा है। लेट सपोज 6 एम्पियर से 7 एम्पियर हो गया, 8 एम्पियर हो गए, 9 हो गए और 10 एम्पियर हो गए। जैसे ये 10 एम्पियर को वी आर जस्ट एस्यूमिंग अगर 10 एम्पियर पे ये पहुंचता है तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो इंडक्टर्स तो ऑफ होने से पहले इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा था, 10 एम्पियर। सो अब इंडक्टर की पोलैरिटी रिवर्स हो गई क्योंकि ये डी एनर्जाइज होना है। तो अब इंडक्टर डी एनर्जाइज कैसे होगा, 10 एम्पियर से डाउन जाएगा, 10 एम्पियर से 9, 8, 7, probably 6। So it has to, तो इस पीरियड में यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ से होगा, लास्ट मोमेंट ऑफ द इंडक्टर करंट। लास्ट मोमेंट ऑफ द इंडक्टर करंट ये था, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके बाद ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि ये डी एनर्जाइज हो रहा है, राइट। सो थिंग्स विल कंटिन्यू। आउटपुट करंट, we have to draw the output current. This is very important. Output current exists for the during the on period and output current also exists during the off period. दोनों कंडीशन में आउटपुट करंट मौजूद है। तो the output current increases during the on period। क्यों इंक्रीज हो रहा है भाई, चूंकि कैपेसिटर वाज फुली चार्ज। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा इट मीन्स कि अपनी एनर्जी ये कन्वर्ट कर रहा है। वोल्टेज कम हो रहे हैं, डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज कम हो रहे हैं। तो ये वोल्टेज कम किस तरह हो रहे हैं, इंक्रीजिंग द आउटपुट करंट। जैसे जैसे वोल्टेज कम होने शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटर करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि इट्स कन्वर्टिंग द इट्स
इट्स पावर, इट्स एनर्जी। तो जो कैपेसिटर करंट जैसे जैसे कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर इस जगह, कैपेसिटर फुली चार्ज था तो अब ये डिस्चार्ज हो रहा है। जब डिस्चार्ज हो रहा है तो जैसे जैसे ये मजीद डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होते जाएंगे। सो वी कैन, अच्छा, बेसिकली हियर the capacitor current is also the output current. So you can see the output current or the capacitor current is increases as the capacitor discharges, output current increase होने शुरू हो जाएगा। ऑफ पीरियड में क्या है? ऑफ पीरियड में ये, ऑफ पीरियड में ये देखें, ये it becomes the main source of supply although it's temporary। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो जिस तरह मैंने बताया, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो करंट इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पर जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो करंट डिक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इज चार्जिंग, so the capacitor current is decreases. Any question? I guess, or I doubt, I guess you should have some question for this one. Anyway, so yeah, I max, I minimum, I average. Now the inductor voltage. What is inductor voltage? आपके इंडक्टर वोल्टेज कहाँ निकालना है? ऑन पीरियड के लिए इंडक्टर कहाँ है? यहाँ पर है। ऑन पीरियड में देखा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट। इनपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंडक्टर, सो बोथ आर इन पैरेलल। सो इसका मतलब है जो इनपुट वोल्टेज होंगे वही इंडक्टर वोल्टेज होंगे। दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑफ पीरियड में क्या हो रहा है? व्हाट इज ऑफ पीरियड में इंडक्टर वोल्टेज व्हाई इट गोस नेगेटिव? जब इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा होता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस है। इस केस में इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज माइनस आ जाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स गोस टू माइनस। अगेन सम मोर is for the collector current. नहीं, sorry, collector current नहीं, capacitor current. Capacitor current is basically for the on period, is basically the output current is the capacitor current. So the capacitor, जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे होते हैं यहाँ पर तो कैपेसिटर करंट पॉजिटिव होता है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर करंट नेगेटिव होता है। तो इन दिस केस एज वी हैव सीन, इंडक्टर एनर्जाइजेस बट द कैपेसिटर डिस्चार्जेस। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इस वजह से कैपेसिटर की जो पोलैरिटी होगी वो करंट नीचे बनेगा, माइनस की डायरेक्शन। Why capacitor current is increasing in this negative part? इसलिए इंक्रीज कर रहा है कि as we have seen before कि कैपेसिटर यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहे हैं, तो डेट वोल्टेज कम होने की वजह से यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कैपेसिटर करंट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ऑफ पीरियड में ये ऑफ पीरियड आ गया, कहाँ है? ये ऑफ पीरियड है। ऑफ पीरियड में कैपेसिटर करंट इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि ऑफ पीरियड में कैपेसिटर करंट डिक्रीज हो रहा है। व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? बिकॉज इन दिस सेक्शन, इन दिस ड्यूरेशन, कैपेसिटर इज चार्जिंग। जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऑल्टरनेटिव तरीके से मैं आप लोग को बता सकता हूँ। तो दिस वी फिनिश। ये तो मेरे पास वही पुरानी स्लाइड्स हैं। यस, सो वी हैव फिनिश दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो आपको यहाँ पर
आपको एग्जाम्पल try all the examples from 9.1 to 9.12. Including all the 10 chapters. So this is included in the course. This course आपको इस कोर्स में include है all the examples from 9.1 to 9.12, including all the end chapters problem. Okay, one more thing. बक बूस्ट मैंने बक कन्वर्टर की डेरिवेशन आपको बता दी है, बूस्ट कन्वर्टर की कंप्लीट डेरिवेशन बताई है। इसी तरह से बक बूस्ट कन्वर्टर की भी डेरिवेशन है, बट आई हैव नॉट मेंशन हियर, इट इज यू हु हैज टू कवर दिस टॉपिक। तो इसमें टोटल एग्जांपल्स 9.1 से लेकर 9.12 तक हैं। ये सारी की सारी आपको एग्जांपल्स करनी है और एंड चैप्टर्स प्रॉब्लम भी आपको करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट, probably एक या डेढ़ या तकरीबन 2 क्वेश्चंस, मे बी 1.5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन। नाम बता दें जी, क्या नाम बता देंगे? एमएच राशिद? एमएच नहीं, ये तो मैंने बताया, एमएच राशिद नहीं है यार, ये कौन सा है? अशफाक अहमद। ओके सर। अशफाक अहमद, ये आपको करना है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा एक से, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं एक से ज्यादा दूं, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन द इक्विवेलेंट सर्किट और मुझे वेव फॉर्म ड्रॉ करवाने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जब बच्चे वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, पोलैरिटी भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, डायरेक्शन भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। सो फॉर मी द वेव फॉर्म्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Or of course, waveform you can draw when you draw correctly the switching equivalent circuits. 2 मिनट जरा रेस्ट कर लें, फिर मैं ना दूसरी चीजें पे पढ़ाता हूँ आप लोगों को। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? चलिए let me ask some question. मुसाफ अली खान, मुसाफ अली खान, मुसाफ अली खान, मुजीबुर रहमान। यस सर। जी, क्या पढ़ा अब तक? सर ये अभी सेकंड हाफ। आवाज कम आ रही है आपकी। सर इसमें हमने ये बक बूस्ट कन्वर्टर की जो वेव फॉर्म है वो हमने अंडरस्टैंड की है इसमें। तो बक बूस्ट कन्वर्टर में वोल्टेज स्टेप अप होते हैं या स्टेप डाउन होते हैं? सर इसमें हम रेगुलेट कर रहे होते हैं थ्रू ड्यूटी साइकिल। इसमें अप भी हो सकते हैं और स्टेप डाउन भी हो सकते हैं। अगर हम ड्यूटी साइकिल 50% से इंक्रीज कर सकते हैं तो मे बी वो बूस्ट कन्वर्टर हो, अगर ड्यूटी साइकिल लेस देन 50% होगा तो कह सकते हैं। अच्छा ठीक है यार, इसमें जो मेन इक्वेशन था ना वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है।
इसमें जो so the equation for the buck boost converter is this one. So output current is equal to duty cycle yes. So this is the equation. This is the equation for the buck boost converter. अब इस equation में आप लोग ये बताइए what happens if duty cycle if K is equal to 0. ये बताए मुबश्शिरा ज़ैब 007 मुबश्शिरा ज़ैब मैं इन सबको एब्सेंट मार्क करूंगा जो जवाब नहीं दे रहे। साद खान सीरत बतूल 014 सीरत बतूल फवादुल हसन मोहम्मद जहादेक कौन है? फवादुल हसन। हाँ फवादुल हसन। ये इस इक्वेशन को जरा सा आप देखें और मुझे बताएं कि अगर ड्यूटी साइकिल K इज इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट कितने होंगे यहाँ पर? If K is 0, so what will be the output? फवादुल हसन के बाद है जहाजेब सैयदा अरूबा फहद मुख्तार जी। फवादुल हसन आप अपना आंसर जो है कंटिन्यू करें। If K is equal to 0, so what will be the output in the buck boost converter? फहद मुख्तार अदनान खालिद जी ये बताइए द सेम क्वेश्चन। ये इक्वेशन है जो कि मैंने डिराइव नहीं करवाया है। दिस डेरिवेशन इज लेफ्ट टू यू। ये आउटपुट की इक्वेशन है फॉर द बक बूस्ट कन्वर्टर। तो इफ K इज इक्वल टू 0, इससे पहले आप ये बताइए कि K क्या है? व्हाट इज K? सर K तो ड्यूटी साइकिल है। वेरी गुड। तो अब K ड्यूटी साइकिल अगर 0 है, so what will be the output of this buck boost converter? सर ये अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो सर ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि सर 1 - 0 0 जी सर 1 - कैसे हो जाएगा यार? सर ऐसा होगा कि ये जो K की वैल्यू है ये जब आप 0 लिखेंगे तो सर 1 - 0 विल बी 0 एंड 0.0 विल बी 0। 0 इज इक्वल टू 0 ये क्या कह दिया आपने यार? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपॉन में लिखा हुआ है ना 1 - 0 और 1 - K लिखा हुआ है
तो सर 1 minus k will be 1 minus 0. तो 1 में से मैं 0 निकालूंगा तो कितना बचेगा? 0 सर 0. ओह माय गॉड, ओ सॉरी 1 देख बचेगा. लिए सॉरी सर सर वो नींद सर ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन लेक्चर का ये नुकसान है। अच्छा, अपन जाहिर बात है, यू आर करेक्ट, आपने मिस्टेक किया था, सही है। तो अब आप बताइए आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर ये 0.1 0, दैट्स राइट। ये 1 माइनस के है, जाहिर बात 1 बच गया, यहाँ पे के की वैल्यू 0, एवरीथिंग इज 0, सो आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है आउटपुट की वैल्यू 0 होगी if the duty cycle is 0। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ नेक्स्ट इसी और से, कि अगर के की वैल्यू मैं यहाँ पर कर दूँ, लेट्स सपोज के की वैल्यू 0.5, 50%। So okay, now next, who is next? Himayu Arshad, उठ जाओ हिमायू अरशद। हसन अली शाहिद, नईम अहमद खान जलाली, सब सो रहे हैं। अच्छा, फजील राजा, आप तो उठ जाओ फजील राजा। यस सर। वेरी गुड जी फजील राजा। अब आप ये बताइए कि ये तो आपने शायद सुना ही होगा जो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन कर रहा था, दिस इज द आउटपुट ऑफ द बक बूस्ट कन्वर्टर। इसमें फजील राजा आप ये बताइएगा, अगर के की वैल्यू 0.5 है तो आउटपुट वैल्यू कितनी हो गई? सर V0 इज इक्वल टू Vi आ जाएगा। V0 इज इक्वल टू, वेरी गुड 0.5, यहाँ 0.5 बचेगा, 0.5, दैट्स राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट है वो इक्वल्स टू इनपुट हो जाएगी। यस सर, ना है ना? कन्वर्टर होगा ना बूस्ट। अब आप यानी कि के की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो आउटपुट 0 है, के की वैल्यू अगर आपने 0.5 किया है तो आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर के की वैल्यू 0.3 हो तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी तकरीबन? सर अगर के की वैल्यू लेस देन इनपुट होगी या ग्रेटर देन इनपुट होगी? सर लेस देन इनपुट होगी। वेरी गुड, थैंक यू। काशिफ नजीर, शहजाद अहमद खान, माइक बंद कर दें प्लीज जिनका माइक ऑन है। यस सर। कौन बात कर रहे हैं? शहजाद अहमद खान सर। शहजाद अहमद खान, शहजाद बात कर रहे हैं, गुड। तो ये बताइए कि ये आपने ये चीजें अंडरस्टैंड किया, ये जो क्वेश्चंस हैं? जी सर, के इज इक्वल टू सर ये बताइए कि अगर मुझे लेट्स सपोज अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू जो है ना लेस देन इनपुट रखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी साइकिल कितनी सिलेक्ट करनी है? सर 50% से ज्यादा करेंगे या 50% से कम करेंगे? अगर आउटपुट मुझे इनपुट से कम रखनी है, यानी कि मुझे ये स्टेप डाउन कन्वर्टर बनाना है, स्टेप डाउन कन्वर्टर बनाना है, तो सर लेस ड्यूटी साइकिल, हाँ ड्यूटी साइकिल सर ड्यूटी साइकिल लेस देन 50 करना पड़ेगा। वेरी गुड, लेस देन, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद आ गए काशिफ नजीर, इबाद अहमद मुफ्ती। इबाद अहमद मुफ्ती, आपकी वैसे भी अटेंडेंस बहुत कम है, अब तो ऑनलाइन आ गए। हेलो, हाँ कौन? इबाद अहमद। शाबाश। अच्छा, ये बताएं कि ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर के की वैल्यू मैं 100 कर दूं तो क्या होगा? सॉरी 100% मींस के की वैल्यू मैं 1 कर दूं तो
क्या होगा आउटपुट की वैल्यू? सर ये बूस्ट कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर बन जाएगा। आउटपुट की वैल्यू क्या इनपुट से ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगी, 50% से ज्यादा है तो मतलब ये वेरी गुड, ओके दैट्स गुड, थैंक यू इबाद अहमद। काशिफ नजीर, हाफिज मोहम्मद हमजा, रुमैज अली, मुरसलीन, वजाहत अली। यस सर। जी नाम बताइए। वजाहत अली। वजाहत अली, गुड। वजाहत अली, ये एक हमने एक जनरल निकाला है इससे, जनरल इक्वेशंस के अगर के की वैल्यू 0 है तो आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और के की वैल्यू अगर 1 है तो ये स्टेप अप ट्रांस कन्वर्टर बन जाएगा, और के की वैल्यू अगर 0 से 1.5 है, 0.5 है तो स्टेप डाउन कन्वर्टर बन जाएगा। ठीक है ना? सही सर। तो इसका मतलब ये हुआ, लेट सपोज अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल इनपुट आपके पास 10 वोल्ट है, आउटपुट अगर आप 12 वोल्ट करना चाह रहे हैं तो के की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे? इनपुट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, आउटपुट मुझे 12 वोल्ट करना है, सो वेयर शुड बी द वैल्यू ऑफ द के? सर के की वैल्यू को वी आउट के साथ लिखेंगे। सर के की वैल्यू को वी आउट के साथ कर देंगे ना, तो जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो वी आउट ज्यादा हो जाएगा। हाँ नहीं, के की वैल्यू की रेंज क्या किस तरफ होनी चाहिए? 50% से कम होनी चाहिए, 50% से ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 100 से कम होना चाहिए? कम होनी चाहिए। उमर खान, उमर खान, मोहम्मद वकास। सर सॉरी, के की वैल्यू ज्यादा होगी। सर ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा था कि आप इसको शायद सही कर लेंगे, क्योंकि जाहिर बात इट्स अ मिस्टेक, तो इस वजह से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। थैंक यू। मोहम्मद वकास। जी सर। जी बताएं, आउटपुट अगर इनपुट, आउटपुट की वैल्यू 75% ऑफ द इनपुट रखनी है। अच्छा चले छोड़ें इसको, छोड़ें। स्टेप अप कन्वर्टर बनाना है, बूस्ट कन्वर्टर बनाना है, तो ड्यूटी साइकिल की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? ड्यूटी साइकिल की रेंज क्या होनी चाहिए? हारिस महमूद। यस सर। क्या पढ़ा है हमने आज तक? कितने कन्वर्टर्स पढ़ लिए? डीसी सर 3 तरह के, बक बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है। असद बट, असद बट, टाइम थोड़ा रह गया। असद बट। निहाल अहमद। जी सर। निहाल अहमद जी। आपसे क्या क्वेश्चन करूं यार? कैपेसिटर की वैल्यू अगर हम ज्यादा करते हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। नहीं, कैपेसिटर जो है वो आउटपुट में पैरेलल में लगा हुआ है, जैसे दिस इज द केस। कैपेसिटर जो है ना, ये कैपेसिटर आउटपुट के पैरेलल में लगा है। अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, बड़ा कैपेसिटर लगा देता हूँ, तो आउटपुट में क्या इम्पैक्ट आएगा? सर हमारे आउटपुट वोल्टेजेस बढ़ सकते हैं। आउटपुट वोल्टेजेस बढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन सही है, आउटपुट वोल्टेजेस बढ़ सकते हैं, बट आउटपुट वोल्टेजेस के बढ़ने का ताल्लुक कैपेसिटेंस से नहीं होता। तो ये जरूर होगा कि यहाँ पर रिपल्स आउटपुट के कम हो जाएंगे। कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी ना,
रिपल्स कम हो जाएंगे। सही है। ठीक है। मोहम्मद मुताहिर, मुताहर, मोहम्मद मुताहर, नसीब रऊफ अब्बासी, मुबशिरा जैद, सीरत बतूल, सैयदा रूबा, अच्छा बस 5-10 मिनट का ना, नेक्स्ट स्लाइड से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। So this is the end of the chapter 9 of Ashfaq Ahmed. This is important chapter. आपको ये करना है, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। Chapter 9, sorry, chapter 1. Please remember, this is chapter 1. So from chapter 1, Ashfaq Ahmed. Just a few minutes. So in this chapter, the topic, this one is chapter 1, Ashfaq Ahmed, lecture 21. In this chapter, we have to study the losses in the practical switches. अब practical switches कौन से हैं? For example, buck converter में कौन सा practical switch है? Transistor है। Boost converter में कौन सा practical switch है? Transistor है। Buck boost converter में कौन सा practical switch है? Transistor. IGBT. Yes. IGBT is also transistor. Transistor can be any type. IGBT हो सकता है, MOSFET हो सकता है. Even for simple circuits or for basic circuit, NPN transistor भी use किया जा सकते हैं. Okay. So this losses is regarding the losses inside the transistors, inside the switches. इसके बारे में पढ़ेंगे. एक तो देखें, एक तो लॉसेस ये होता है कि जी पूरा कन्वर्टर का है, बक कन्वर्टर के लॉसेस कितने हैं, आप क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से बक बूस्ट कन्वर्टर के लॉसेस कितने हैं, आप क्या करेंगे, इनपुट पावर निकालेंगे, आउटपुट पावर निकालेंगे, उनको आपस में एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आप। सो दिस इज नॉट रिगार्डिंग द लॉसेस ऑफ द कन्वर्टर एज अ होल, दिस इज regarding the losses as an individual element, which is transistors, ठीक है। तो losses in the transistor की जगह पे स्विच, चूंकि डायोड्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो डायोड्स की भी स्विचिंग लॉसेस हो सकते हैं। So this loss is not in general what we mention for any type of converter. This is especially losses for the practical switches only. For example, अगर आपके पास ये सोर्स, ये दिस इज अ बेसिक सर्किट और यहाँ पर आपके पास एक स्विच है, इट कैन बी एनी स्विच, इट कैन बी नॉर्मली इट इज ट्रांजिस्टर। सो इसमें ये है, जब स्विच ओपन होगा, स्विच ऑफ स्टेटस, सब स्विच ऑफ होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इट इज मेंशन हियर। So this is the switch.
ये स्विच ऑफ स्टेटस में तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम होगी, ठीक है। और इसके स्विच के क्रॉस वोल्टेज VSW कितने होंगे, बिकॉज दिस स्विच इज डिसकनेक्टेड, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस सप्लाई के साथ, और इस स्विच का दूसरा टर्मिनल भी सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। तो स्विच के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम से मुराद क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज होंगे, जो भी सप्लाई वोल्टेज है वही स्विच के क्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक। सो और करंट कितना होगा, जब स्विच ऑफ है तो करंट, अच्छा ये स्टिल वी आर कंसीडरिंग द लॉसेस इन द आइडियल स्विचेस, दीज आर द प्रॉपर्टी of the only ideal switches. So we have to study for the practical switches, like we have to start with the ideal switch. So we know that if the ideal switch is off, then the switch will be completely open circuit, and the switch acts as an open wire whose resistance is infinite, and the current through it is zero. Open circuit current zero hoga, and thus this current through it is zero. Thus power losses in the switch will be, power losses कितने होंगे, इस स्विच की बात हो रही है, इस स्विच के क्रॉस कितने पावर लॉसेस हैं, तो आप क्या करेंगे, P is equal to VI, वोल्टेज यहाँ पर कितने हैं, वोल्टेज यहाँ पर VS है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो है, और वोल्टेज यहाँ पर V है, VS है, और करंट कितना है, करंट इज 0, तो लॉसेस कितने हो गए, 0 watt, because although it has maximum voltage but the current is 0, so VI, so the power losses will be 0. आप सेकंड स्टेटस ले रहे हैं, now the second status we have when the switch is on में क्या है, ये ट्रांजिस्टर को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। Why we made it short circuit, because we are still considering this switches as an ideal switch. तो ये आइडियल स्विच में जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितने होंगे, इट विल बिकम अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस विल बी 0 ओम। इसके क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, रेजिस्टेंस 0 है, यहाँ पर वोल्टेज across the switch is 0, and the current will be maximum. क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट विल बी, कैसे निकालेंगे, VS divided by RL, so this is the RL, so करंट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। These are the, तो इस कंडीशन में हमें लॉसेस निकालने हैं कि इस स्विच के क्रॉस कितने लॉसेस हैं। Similarly, if the ideal switch is on, this switch is on, then there will be completely short circuit, and the switch acts as a conductor whose resistance is 0 ohm, and thus the power loss in the switch will be P is equal to I square R. I तो है, I की वैल्यू है, लेकिन R resistance 0 है, so the losses will be 0 watt. For the ideal switches, it is also assumed that when switch on, then current immediately turn on without any time delay. Similarly, it also instantaneously turns off without any time delay. ये बता ये रहे कि आइडियल स्विच में ये होगा कि जैसे आपने ऑन किया ये ऑन हो जाएगा, means there is no delay. इसी तरह से ऑन से जब मैं जैसे इसको ऑफ करूंगा तो इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा, which is not possible in practically. कोई भी स्विच अगर आप ऑन करेंगे तो एक स्लाइट माइक्रोसेकंड मिली सेकंड में कुछ ना कुछ टाइम लेता है जो हम ऑब्जर्व नहीं करते, बट इट टेक्स प्रैक्टिकली। सो आइडियल स्विच में ऑफ से ऑन 0 टाइम, ऑन से ऑफ 0 टाइम. So these are the properties of the ideal switch, but the fact is that there is no such ideal switch exists in this world. Let's take an ideal switch. Ideal switch, क्या करें, losses. Okay, now time for to understand the losses in the practical switch. Practical switch आपने एक transistor ले लिया, base यहाँ पर 0 है, it means the transistor is off.
जब ट्रांजिस्टर ऑफ है इसके कलेक्टर टू एमिटर पे कितने वोल्टेज होंगे? ऑफ है मींस कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज यही सप्लाई वोल्टेज आ जाएंगे, सही है। एंड करंट कितना होगा? यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है, ये ऑफ है, तो ऑफ की कंडीशन में सेमीकंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है दैट इज नोन एज आई लीक, आई लीकेज। यहाँ पर आई लीकेज करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब इसकी पावर लॉसेस कितने हैं? So this is known as conduction losses. When the transistor is off, it carries a leakage current. The power loss associated with the leakage current is power off में ये क्या मतलब है? हाँ सही है, ये पावर ऑफ है क्योंकि बेस करंट वेरी जीरो है। हेलो जी जी जी, ये आपने ना वो दोबारा मिला है वहाँ पर रिसेप्शन पे, ठीक है। मैं शायद ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, सही थैंक यू। सो ऑफ हमने क्यों लिखा कि ट्रांजिस्टर ऑफ है, बेस करंट जीरो है, P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं? वी आई बेसिकली वी एस है, और I कितना है? I लीकेज है, इट्स नॉट जीरो। सो द पावर ऑफ विल हैव सम वैल्यू, इट्स नॉट losses in this circuit will have some value, it is not going to be zero। और पावर ऑफ एवरेज कैसे निकालेंगे? इसको आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वी एस आई डी, चूंकि ऑफ है तो ऑफ कितनी देर के लिए? टी ऑफ टाइम आएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बस सिर्फ इस स्लाइड को पढ़ना है, आप परेशान ना हो, ओनली few minutes। In power electronics, the I leakage is very less than collector current. So in majority of the cases, power off is ignored। कहते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर, आप 100 एम्पियर अगर आप ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इट्स पावर हैंडलिंग डिवाइस, आप अगर फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर फ्लो करवा रहे हैं, इसमें जो लीकेज करंट है वो मे बी 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। सो नॉर्मली वी इग्नोर बट प्रैक्टिकली इट इज नोन। अच्छा, अब आप यहाँ पर बस ये आखिरी 2 चीजें रह गई। ट्रांजिस्टर ऑन, जब ट्रांजिस्टर ऑन का मतलब यहाँ पर शो इस तरह क्या है, यहाँ पर पल्स, पॉजिटिव पल्स आ गई तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन है तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगी बल्कि कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज यहाँ पर होंगे, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर, जैसे डायोड में 0.7 होता है, इसी तरह से कलेक्टर टू एमिटर में समथिंग अराउंड 1 or 2 वोल्टेज होते हैं। तो देयर एग्जिस्ट कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज बट इट्स वेरी लो वोल्टेज। तो यहाँ पर पावर लॉसेस कितने होंगे? ऑन की सूरत में कलेक्टर P इज इक्वल टू वी आई, ये कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज आएंगे, और यहाँ पर करंट कितना है? कलेक्टर करंट है। सो वी कैन सी हियर एवरेज पावर ऑन लॉसेस वी कैन डिटरमिन VC सैचुरेशन, IC और टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, ऑन टाइम है तो एवरेज टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1.3। सो प्लीज रिमेंबर इक्वेशन नंबर 1.4 and 1.3। later on we will complete this slide, the switching in the losses। if you have any question please ask, otherwise I have to quit the session। thank you very much। Allah Hafiz।